میں نوجوان اسکالر زید حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تحقیقی مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اکرام، معزز مہمانان گرامی، میرا موضوع ہے علامہ اقبال کا پیغام، نوجوانوں کے نام اور عالمی نوجوانوں کی تحریک پر اس کے اثرات۔ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ قوم کی ترقی کی راہ تبھی ہموار ہوتی ہے جب نوجوان ذہنی اور فکری طور پر راست روی کو اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تحریکوں نے جنم لیا ہے، جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، نوجوانوں نے ان میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر جوش، جذبہ، ہمت، حوصلہ ہوتا ہے، جن کی بدولت وہ دنیا میں کسی بھی آفت سے نپٹنے کا حوصلہ اور ہنر رکھتے ہیں۔ اقبال ایک بلند مفکر ہونے کے ناطے، ایک ذی شعور رہنما ہونے کے ناطے، وہ اپنی شاعری میں نوجوانوں کو اولین مخاطب ٹھہراتے ہیں۔ اسرار خودی کا آغاز ہی وہ مولانا روم کی مشہور اور طویل غزل کے 3 اشعار سے کرتے ہیں۔ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، وہ کہ ایک شیخ دن کی روشنی میں چراغ لیے کچھ تلاش کر رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا کہ مجھے کسی انسان کی تلاش ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ جو بازاری زندگی میں لوگ چل پھر رہے ہیں یہ انسان ہی تو ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان میں جانوروں، حیوانوں اور درندوں کی صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ مجھے ایسے انسان کی تلاش ہے جو شیر خدا، رستم دستاں جیسا شجاع اور بہادر انسان ہو، جو معاشرے سے ظلم و ستم اور فساد ختم کر کے معاشرے کو ایک زبردست انقلاب سے آشنا کر دے۔ اب اسرار خودی کو دیکھیں، اسرار خودی کے آغاز سے لے کر آپ جاوید نامہ تک جائیں تو اقبال جگہ جگہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اپنی تمام امیدوں، آرزوؤں کا مرکز نوجوانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ جاوید نامہ کے آخری اشعار پر بھی توجہ دے لیں تو اقبال ان فارسی اشعار میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمر تمہیں دین مصطفیٰ کے اسرار سمجھانے میں بسر کی ہے، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو میں قبر کے اندر بھی تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ اقبال کا کلام بھرا پڑا ہے نوجوانوں سے، وہ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مفکر نہیں، کوئی بھی ایسا شاعر نہیں کہ جس نے اپنی شاعری کا تمام تر حصہ نوجوانوں کے لیے وقف کیا ہو۔ فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ یہ کس قدر بڑا ایک راز پیش کر رہے ہیں اقبال کہ دیکھیں اس قوم کو اسلحے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس قوم کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد بن جائے۔ اور آج اگر ہم پاکستان میں یا عالمی صورتحال پہ بس منظر نامہ دیکھیں تو اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کی خودی ڈیولپ کی ہوتی تو آج ہمیں بہت سارا بجٹ دفاع پر خرچ نہ کرنا پڑتا۔ تو اقبال جو ہیں جہاں اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں وہاں ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ نوجوانی را چبینم بھی ادب روز من تاریک می گردد چشب، کہ جب میں کسی نوجوان کو آداب سے، ایٹیکیٹ سے، مینر سے نا آشنا دیکھتا ہوں تو میرا دن تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جہاں وہ تعریف کر رہے ہیں وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ہو ضرب ہے کاری۔ جہاں وہ تنقید کرتے ہیں وہاں ان سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں، ان کے اندر موجود خامیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جو ان سے چاہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً
21 मार्च 1932 में वो खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं और एक प्लान दे रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में ख़वातीन और लड़कों के सकाफ़ती इदारे तश्कील देने की तजवीज़ पेश करता हूँ, जिनका सियासत से ताल्लुक़ ना हो। उनका बड़ा मकसद नौजवानों की ख़ाबीदा रूहानी सलाहियतों को बेदार करना है। क्या करना है? रूहानी सलाहियतों को बेदार करना है। इस मकसद के हुसूल के लिए मैं उनको आगाह करता हूँ। मैं आगाह करना चाहता हूँ इस्लाम ने इंसानी सकाफ़त और मजहबी तारीख़ में क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद क्या इम्कानात हो सकते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर इकबाल की नज़र में नौजवानों की तरबियत के लिए वो ये चाहते थे कि हर बड़े शहर में एक यूथ क्लब हो, यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स हों, जहां उन्हें ज़हनी और फ़िक्री और रूहानी तौर पर तैयार किया जाए लीडरशिप के लिए, उनके अंदर खुद ही डेवलप की जाए। इसी तरह इकबाल जो हैं, अगर आप उनकी शायरी को देखें तो वो बहुत ही तहर्रुक का किरदार चाहते हैं नौजवानों से कि वो मुतहर्रिक हों, तहर्रुक अपनाएं, सुस्ती काहिली तनासानी से दूर हो जाए। फरमाते हैं, मोज़ खुद रफ्ताई तेज़ खरामीद गोफ्त हस्तम अगर मी रवम गर न रवम नीस्तम, कि मौज आकर मुझसे, समुंदर की लहर आकर मुझसे कहती है कि देखो मैं हरकत करती हूँ तो मेरा वजूद बरकरार रहता है, और जब मैं हरकत करना छोड़ देती हूँ मेरा वजूद मौदूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तुम भी हरकत व हरारत का सरापा पैकर बन जाओ। नहंगी बच्चाई खुद राच खुशगुफ बेदीन माँ हराम मत किराने बेमोज आवीज़ व असाहिल बपरहीस हमी दरिया असमारा आशियाने। कहते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से हकायत के पैराहे में, मगरमच्छ का बच्चा साहिल समुंदर पर बैठा आराम कर रहा था। मगरमच्छ ने आके उसे कहा कि देखो साहिल से परहेज करो, तमाम समुंदर ही हमारा आशियाना है, जाओ जाकर मौजों से लड़ो, हमारे दीन में साहिल पर बैठकर आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करना हराम है। तो इकबाल जो हैं वो नौजवानों से जगह जगह मुखातिब होते हैं। 1931 में इंग्लिस्तान में नौजवानों के एक ग्रुप से खिताब करते हुए फरमाते हैं, मैं नौजवानों को नसीहत करता हूँ कि दहरियत और मादियत से महफूज रहें। अहले यूरोप की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मज़हब और हुकूमत को अलहदा अलहदा कर दिया है। इस तरह उनकी तहजीबी रूह इखलाक से महरूम हो गई है और उसका रुख मादियत की तरफ फिर गया। गुफ्तार इकबाल में ये हवाला है। फिर इसी तरह वो अलीगढ़ के नौजवानों से जब वहाँ जाते हैं तो वो तकरीर में नौजवानों से मुखातिब करते हुए क्या कहते हैं, गुज़श्ता चंद साल से मैं सिर्फ जस्ते खाकी का मालिक हूँ। ये उनसे वाबस्तगी का। अब आगे क्या फरमाते हैं, मेरी रूह हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर रही है और जब तक ज़िंदा हूँ वो आपकी खिदमत करती रहेगी। यानी वो कलाम जो वो तरतीब दे रहे हैं वो नौजवानों से मुखातिब होना चाहते हैं और नौजवानों ही के लिए वो जी रहे हैं और वो तमाम उम्मीदें और आरज़ुएं नौजवानों से वाबस्ता करते हैं। अकबर इलाहाबादी के नाम एक ख़त में लिखते हैं, सिर्फ़ एक बेचैन और मुस्तरिब जान रखता हूँ, कुव्वते अमल मफकूद है, हाँ ये आरज़ू रहती है कोई काबिल नौजवान जो ज़ौक़े खुदादाद के साथ कुव्वते अमल भी रखता हो मिल जाए, जिसके दिल में अपना इस्तराब मुंतकिल कर दूँ। ये देखें इकबाल क्या चाहते हैं, अब गौर तो करें कि इकबाल चाहते हैं जो उनके अंदर मौजूद है, जो जज्बा, जो लगन, जो इश्क, जो सोच, जो दर्द मौजूद है, वो नौजवान किसी ऐसे नौजवान की तलाश में है जिसमें वो इस्तराब ये मुंतकिल कर सके। तो इकबाल के पास बहुत सारी रूहानी और फ़िक्री तरबियत के लिए मुकम्मल प्लान था जिसका उन्होंने बारहा जिक्र किया है।
21 मार्च 1932 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते उन्होंने तजवीज़ पेश की। तजवीज़ क्या पेश की कि नौजवानों की एक तंजीम बनाई जाए, यूथ लीग्स बनाई जाए, और उसमें क्या हो, वो कहते हैं कि उस एक मरकज़ी तंजीम के तहत समाजी खिदमत, ना मतलूब रसूम व रवाज की इस्लाह और माशरे की इक्तसादी फलाह बहबूद के काम सर अंजाम दे वो तंजीम। तो इससे देखें कि इकबाल ऐसे ही कह नहीं देते मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। अब वो देखें मोहब्बत भी उस नौजवान से करते हैं सितारों पे जो डालते हैं कमन। वो हर एक यूथ के नौजवान से मोहब्बत नहीं करना चाहते, वो सिर्फ उसी पर तवक्को करना चाहते हैं जो सितारों पर डालते हैं जो कमल। फिर इकबाल ने शाहीन के साथ नौजवानों को तशबीह दी है। वैसे तो वो कभी चीते की आंख से तशबीह देते हैं, कभी जुगनू, परवाने, शमा के साथ तशबीह देते हैं, लेकिन वो शाहीन के साथ पूरा फ़लसफ़ा नौजवानों के साथ जोड़ते हैं और चाहते हैं कि शाहीनी सिफ़ात नौजवानों के अंदर पैदा हो जाए। ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के नाम ख़त में लिखते हैं कि शाहीन की तशबीह महज शायराना तशबीह नहीं, इस परिंदे में इस्लामी फ़क्र की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, खिलवत नशीन रहता है, तेज़ निगाह रखता है और बुलंद परवाज़ है। अब ये 5 क्वालिटीज़ नौजवानों में वो पैदा करना चाहते हैं। तो इकबाल जो है वो चाहते हैं खुददार और गैरतमंद नौजवान बन जाए, किसी दूसरे पर तवक्कुल ना करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, खुद अपनी मंजिल की राह तराशें। ये सबसे फिर हराम से बचें, हलाल खाएं और ऐसे नाजायज़ ज़राए से बचते रहें। फरमाते हैं शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। आप देखें शाहीन ऐसा परिंदा है जो 10,000 से लेकर 15,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है, एक तैयारे से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। वो क्यों इतना बुलंद परवाज़ रहता है? क्योंकि उसमें सुस्ती, काहली, तन आसानी पैदा न हो। जब इंसान के अंदर सुस्ती, काहली और तन आसानी पैदा हो जाती है तो उसकी तमाम सलाहियतें जो हैं वो ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाती। आप देखें नौजवानों के अंदर फ़िलासफ़र्स इंसानी ज़िंदगी को 3 अदवार में तकसीम करते हैं, एक बचपना, दूसरा नौजवानी और तीसरा बुढ़ापा। बचपन में इंसान बहुत कम इल्म, कम फहम होता है, दिलो दिमाग होने के बावजूद कम फहम होता है, कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह बुढ़ापे के अंदर इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों के ज़वाल का दौर होता है, लेकिन जो नौजवानी का ज़माना है वो इंसान की ज़हनी और फ़िक्री सलाहियतों के उरूज का ज़माना होता है। तो इसलिए इकबाल जो हैं वो चाहते हैं कि नौजवान अपना किरदार, भरपूर किरदार अदा करें, और वो शाहीनी सिफ़ात से तशबीह देते हैं। ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, गुज़र औकात कर लेता है ये कोह बयाबा में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कार आशियाना बंदी। तो इकबाल जो है वो शाहीन से तशबीह देते हैं, नौजवानों से अपनी उम्मीदें और आरज़ुएँ वाबस्ता करते हैं। मुख्तलिफ़ हकायात के ज़रिए वो नौजवानों के अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा करना चाहते हैं कि उनका विजन ब्रॉड हो। वो जो शाहीन दूरबीनी सिफ़ात रखता है उससे ये है कि वो विजन ब्रॉड करे, वो आने वाले इम्कानात को पहले से पाकर उसके मुताबिक तदबीर इख्तियार करे। खलवत पसंदी वो क्यों उसे पसंद है कि खिलवत में इंसान जो है वो अपनी पोशीदा सलाहियतों का इरफान हासिल कर सकता है, अपना एहतसाब कर सकता है, अपने अंदर पैदा होने वाली खामियों को दूर कर सकता है। तो मैं इसी के साथ ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे मुकाले में शामिल हैं। तो उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको मेरी समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।